A very warm welcome to each one of you. Today we step into the profound and intellectually rich world of John Donne, one of the most celebrated metaphysical poets of English literature. After exploring his biography and understanding the unique characteristics of metaphysical poetry in our previous class, we are now ready to engage with one of his most soul works, The Good Morrow. Right? So, this is not just a love poem, it's a meditation on emotional awakening, spiritual union, and the timeless nature of true love. Through a close reading of the text, we will uncover how Donne blends philosophy, science, and sacred imagery to construct a love that is not bound by the physical world but transcends into the eternal, right? So let's open our hearts and minds to the beauty of language, the depth of feeling, and the brilliance of thought that Donne offers in his powerful piece of poetry. Let the journey into the metaphysical begin. So, the poem The Good Morrow was written around 1600 to 1601. It is a part of songs and sonnets likely written for his wife and more. So, blends physical and spiritual love, philosophical thoughts, and emotional depth. Good Morrow is one of the most celebrated poems from John Donne's collection Songs and Sonnets, likely written in the early 17th century. It belongs to his early phase of writing when he was deeply engaged in exploring the nature of love, not merely as an emotional experience but as a spiritual and intellectual phenomenon. So Donne was writing uh, Good Morrow during the late Renaissance, early Baroque period of uh, England, a time when poetry was undergoing a transition from the ornamental style of Elizabethans to something more analytical, philosophical, and introspective. So, this was the age of scientific inquiry, religious reformations, and philosophical awakening, all of which influence Donne's poetic thoughts. So, Donne is considered the leader of metaphysical poets, a group characterized by their use of conceits, colloquial languages, and intellectual play, themes of love, religion, time, and mortality. So, we will discuss the themes of the poem. The first theme is spiritual and mature love. So, at the heart of the poem lies the theme of true awakened love. So, Donne contrasts the immature, lust-driven relationships of the past with the deep and soulful connection he now shares with his beloved. Their love is not just a physical but spiritual one, suggesting an internal bond that transcends time and space. The second theme is unity and completeness. So the lover described as two halves that make one whole. Donne uses geographical metaphors like hemispheres to show their love forms a perfect complete world. ये जो यहाँ line है ना ये वाली if are two एक second हाँ ये वाली if our two loves be one or thou and I love so like that none to slacken none can die. So the unity is so strong that it renders them immortal as their love is perfectly balanced and harmonious. Right? Third theme is awakening and transformation. So the title and the poem suggest a new beginning, a metaphysical morning where the lovers move from illusion, the past, to reality, which is true love. Their emotional and spiritual transformation
is central to the poem. So their previous experience are dismissed as childish dreams. It's only now the real life and love have begun, right? The fourth one is transcendence of physical love. Although the poem begins with the celebration of romantic intimacy, right? But Donne quickly elevates the conversation to a philosophical and metaphysical plane. Their love is so profound that it exists beyond the physical realm. It's a union of mind, souls, not just the bodies. So the fifth one is exploration of their self through love. So Donne suggests that love helps discover who we truly are actually. The speaker's identity is awakened now and completed in the presence of the beloved. Love becomes a mirror through which both individuals see their truest selves. So basically, love can through love they explore their identity, their real self actually. The last theme is immortality of love, because their love is mutual, their love is mutual, equal, and balanced, and spiritual too actually. So basically their love is mutual, equal, balanced. Their love is spiritual, so it's not the subject to decay or death. So Donne ends the poem with the idea that love, when pure and balanced, it can't die, hinting at the eternal nature of the true affection, right? So let's talk about the poem. The Good Morrow is a title. It perfectly fits this style. It emerges the personal with cosmic, using metaphysical conceits to elevate physical love into something divine and eternal. Right. So actually, this poem cons- it can consider Donne's own personal life that was marked by a secret marriage to Anne More, a union that cost him social standing and career for some time. So most of his love poems are believed to reflect this deeply personal yet transient experience of love, a love that defied societal norms and found its justification in emotional and spiritual truth, right? So the title Good Morrow, this this is an old fashioned way to greet someone. Like these days if we want to greet someone we say ना good morning. तो ये पुराना तरीका है, ऐसे किसी को गुड मॉर्निंग बोलने की जगह गुड मोरो बोला जाता था. So it suggests the morning of a morning of awakening. It's a metaphor for the speaker's spiritual and emotional rebirth from through love. The poem begins with a reflection on the past before the lovers met, and evolves into a celebration of a complete, harmonious union that transcends physical desire. Right? So, the title Good Morrow may seem deceptively simple at first glance, uh, but it carries rich symbolic and thematic significance with the metaphysical framework of the poem. The literal meaning of the title is good morning. This is an old fashioned greeting equivalent to this. It immediately evokes the imagery of new beginning. क्योंकि इसका जो मतलब होता है वो होता है गुड मॉर्निंग, राइट. So it's an image of new beginning, a moment of awakening. It suggests that something dormant is now coming to life, right? So in Donne's metaphysical context, this morning is not just the start of a physical day but the uh, dawning of the true love and spiritual consciousness. So the lovers have moved beyond the shallow experience of the past and are now awakened into a profound and unified love. So this morrow marks transitions from sleep to wakefulness,
illusion to truth, physical attraction to spiritual union. So basically, so the title prepares the reader for a journey of transformation. It suggests that everything before this moment was incomplete and dreamlike, and now with love, life begins in its truest and fullest form. So let's read the poem. So here are 3 stanzas in the poem, right? तो पहला stanza पढ़ते हैं. I wander by my troth when thou and I. Troth is an archaic word of truth. ठीक है. What thou and I did till we loved, were we not weaned till then? Weaned का मतलब बेसिकली यहाँ पर है जैसे किसी की कोई पुरानी चीज़ आदत कोई छुड़ाना है, जैसे एक छोटे बच्चे का एक दूध छुड़ाना कितना मुश्किल काम होता है, इस तरह से ये अपने आप को भी बोल रहे हैं. सो द स्पीकर बिगिंस विद अ सिंसेयर ओथ. यहाँ पर ये बाय माई ट्रूथ, क्योंकि ये एक तरीके की ओथ है, जैसे हम बोलते हैं ना बाय माई वर्ड, बाय माई ट्रूथ. तो बाय माई ट्रूथ, आई वॉन्डर. सो दिस पोएम बिगिंस विद अ सिंसेयर ओथ and express astonishment. What were he and his beloved doing with their lives before they truly fell in love? So इधर ना ये ये एक तरह का क्वेश्चन कर रहा है स्पीकर कि when we were not lovers what would we do. एक्चुअली हमने किया क्या है, हमने तो हम लोग एक्चुअल प्यार में पहले थे ही नहीं, तो हम कर क्या रहे थे. एक्चुअली ना दिस पोएम इज रिटन इन द एज ऑफ डिस्कवरी बिफोर 17th century, around 17th century, when European countries were finding new countries through seas, like Vasco da Gama found India, Columbus found America. तो वो एक जो एज था ना, एज ऑफ डिस्कवरी बोलते हैं इसको, उस टाइम पीरियड को. तो ये उसको एक तरह से कंसीडर करके ये पोएम लिखा है. तो द स्पीकर थ्रू दिस 2 lines, इस इन 2 लाइन से द स्पीकर बिगिंस विद अ सिंसेयर ओथ एंड एक्सप्रेसेस एस्टोनिशमेंट, लाइक व्हाट वर ही एंड हिज बिलवड डूइंग विथ देयर लाइव्स बिफोर दे ट्रूली फेल इन लव. तो ये क्वेश्चन है कि हम लोग कर क्या रहे थे तब जब तक हम प्यार में नहीं थे. आई वॉन्डर बाय माई ट्रूथ फॉर दाउ एंड आई. तुम और मैं, मेरे को बड़ा वॉन्डर होता है कि मतलब सच कह रहा हूँ मैं, ये कसम खा के कह रहा हूँ मैं ये, कि तुम और मैं क्या कर रहे थे टिल वी लव, जब तक हम प्यार में नहीं थे. वी वर नॉट वीन टिल देन. तो ही क्वेश्चंस वेदर दे वर इमोशनली और स्पिरिचुअली मेच्योर्ड. मतलब वो वीन थे भी कि नहीं थे. जैसे छोटा बच्चा जब अपनी माँ का दूध छोड़ देता है तो हम कहते हैं ना ये बड़ा हो गया है. तो यहाँ पर वीन्ड होता है लाइक बीइंग मेच्योर. सो वो कह रहा है कि हम तो तब इतने मेच्योर भी नहीं थे बिफोर लव. सो दे वर इवन इमोशनल एंड स्पिरिचुअली मेच्योर बिफोर लव अवेकेंड देम. सो इट इम्प्लाइज दैट अर्लियर एग्जिस्टेंस वॉज childish, or we can say their earlier existing was incomplete, right? So यहाँ पर rhetorical question है, ये है, यहाँ पर भी question है. It evokes their curiosity and philosophical reflection. ठीक है. So basically ये एक तरह से question ही पूछ रहा है कि हम कर क्या रहे थे. ये बहुत ज़्यादा इसको अवेकनिंग हो गई ना जब से ये he falls in love with his beloved. Next line. But sucked on country pleasures childishly, or snorted we in the 7 sleepers den. So country pleasures, इसका मतलब है, country pleasures का मतलब है childish, चाइल्डिश प्लेजर्स. बच्चे के जो बच्चों वाली जो हरकतें होती है जिससे बच्चों को मज़ा आता है, जिसको वो इन्जॉय करते हैं, उसकी बात हो रही है ये. ठीक है. और स्नोटेड तो पता है, स्नोर को ही बोला है इसने.
snore. In the seven sleepers ना ये बाइबलिकल रेफरेंस है, ये BF लिख दिया मैंने, बाइबलिकल रेफरेंस। ये मैं आपको ओरली बता देती हूँ। इन द बाइबल द 7 sleepers hide them to escape from religion and sleep for 200 years। बाइबल में ना 7 sleepers एक्चुअली, ये 7 sleepers हैं जो कि 200 साल तक छिपे रहे थे रिलीजन और मतलब 200 साल तक ये लोग छिपके रहे थे, ठीक है। सो बेसिकली ही कंपेयर्स देयर अर्लियर एक्सपीरियंसेस टू कंट्री प्लेजर। वो कह रहा है कि हमारे जो पहले के बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेजर्स चाइल्डिशली, हमारे जो पिछले जो एक्सपीरियंसेस थे वो उसको कंपेयर कर रहा है कंट्री प्लेजर्स से। जैसे कि रस्टिक थे, वो जो हमारे प्लेजर्स थे, आप लिख लीजिए उसको, मैं ओरली बता रही हूँ। वो रस्टी थे, जो कंट्री प्लेजर्स थे वो रस्टी थे, शेलो थे, सेंशुअल थे, थिंग्स दे इंडल्ज इन चाइल्डिशली। और वो इन सब चीज़ों में, इन प्लेजर्स में, जो मैंने 3 प्लेजर्स बताए ना, वो रस्टिक, शेलो, सेंशुअल, वो सब, उन सब में ये इंडल्ज थे चाइल्डिशली, ठीक है। एंड द 7 स्लीपर्स, ये जो 7 स्लीपर्स डेन की बात हो रही है, 7 स्लीपर्स डेन, इट्स अ बाइबलिकल एंड लेजेंडरी एल्यूजन। ये एक्चुअली ना एक ग्रुप था, a group of youths who slept in a cave for centuries, like 200 साल तक ये लोग सोते रहे, unaware of time passing, इनको पता भी नहीं था कि इनका टाइम कितना बीत गया है। So Dunn suggests they were spiritually asleep until the true love awakened them। तो जैसे वो लोग सो गए थे, उनको कुछ उन्हें अवेयरनेस नहीं थी, ऐसे हम भी शायद सो रहे थे, स्नोटेड मतलब स्नोर कर रहे थे सोते टाइम हम लोग। कुछ लोग जो स्नोर करते हैं ना, इसका मतलब बहुत गहरी नींद में थे, वो 7 स्लीपर्स की तरह से, मतलब 7 स्लीपर्स डेन में जैसे वो यूथ सो गया था ना, ऐसे ही हम लोग भी सो गए थे, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट। नाउ द नेक्स्ट लाइन्स आर इट वॉज सो मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं इट इज़ ट्रू, इट वॉज सो मतलब ये सच है। बट दिस all pleasures fancies be, right? Even any beauty I did see which I desired and got, it was but a dream of thee। दी का मतलब आपको मतलब बताया ही हुआ है, यू होता है इसका मतलब। सो ये एडमिट करता है, ये 3 लाइन से ना लास्ट की, ये एडमिट करता है, येस देयर पास्ट लाइव्स वर ट्रिवियल, ऑल अर्लियर प्लेजर्स, जितनी प्लेजर्स की बात हो रही है ना, ऑल अर्लियर प्लेजर्स वर मेयर फैंसीज, इट मीन्स दे आर नॉट रियल, राइट। एनी ब्यूटी बोल रहा ना, इफ़ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी, तो ये कहता है कि एनी ब्यूटी ही एवर सो एंड डिज़ायर्ड बिफोर, दोज वर ओनली इल्यूजन्स। वो सब क्या थे? वो सब इल्यूजन थे, वो ड्रीम थे, दैट नाउ डिजॉल्व, अब वो सब डिजॉल्व हो गए इन द लाइट ऑफ दिस ट्रू लव। अब वो किसकी लाइट में वो सब डिजॉल्व हो गए? जो पहले की ब्यूटी उसने देखी थी, उन सबको वो इल्यूजन कह रहा है, ड्रीम कह रहा है। जो जो उसने कभी डिज़ायर किया था, उसे मिला भी था, लेकिन वो सब इल्यूजन था। और अब वो उसकी बिलवेड की लाइट में वो डिजॉल्व हो गया है इन द लाइट ऑफ हिज ट्रू लव, एंड हिज बिलवेड एक्चुअली इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल पास्ट डिज़ायर। मतलब कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने डिज़ायर किया था ना, वो सब तुम ही हो, राइट। सो यहाँ पे एक मेटाफिजिकल कंसीट है कि वो अपनी पास्ट लाइफ को एज अ ड्रीम बता रहा है और करंट लव को अपनी अवेकनिंग बता रहा है। सो दिस टेंजा सेट्स द फाउंडेशन दैट लव हैज़ अवेकेंड द स्पीकर इनटू अ न्यू एंड मोर मीनिंगफुल लाइफ इन एग्जिस्टेंस। अब वो बहुत अच्छी लाइफ में आ गया है, बहुत ही मीनिंगफुल लाइफ है उसकी। पहले जो भी कुछ था वो सब इल्यूजन था, वो सब ड्रीम था। नाउ स्टेंजा 2, एंड नाउ गुड मॉरो टू आवर वेकिंग सोल्स विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फियर। सो ये जो लाइन है ना, वन अनदर आउट ऑफ फियर, इसका मतलब ये कि अब उनको कोई ज़रूरत नहीं है जेलेसी की, नो नीड ऑफ जेलेसी।
राइट. सो इन दो लाइन्स का क्या मतलब है? नाउ दैट दे आर ट्रूली इन लव, सो द स्पीकर ग्रीट्स देयर वेकिंग सोल्स. कह रहे हैं ना, नाउ गुड मोरो टू आर वेकिंग सोल्स. तो हमारी जो सोल्स हैं अब उनके लिए एक एक्चुअल गुड मॉर्निंग है, गुड मोरो है. मतलब दिस इज़ द एक्चुअल मॉर्निंग फॉर आर वेकिंग सोल्स, क्योंकि अब हम सच में प्यार में हैं, अब हमारी अवेकनिंग हो चुकी है. दिस इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल वेकिंग, but it's also a kind of spiritual awakening. Their souls are now aware and alive, and they don't keep watch on each other out of fear. मतलब उनके अब वो जो एक दूसरे के ऊपर ना से ध्यान भी नहीं देंगे, क्योंकि अब उनको कोई डर नहीं. और डर किसका था? जेलसी का. क्योंकि अब उन्हें लगता है कि अब तो हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, हम तो बिल्कुल सच में प्यार में हैं. सो बेसिकली अब किसी बात का डर नहीं है, वो डर है जेलेसी का. राइट. सो दे डोंट कीप वॉच ऑन ईच अदर आउट ऑफ फेयर, मीनिंग देयर लव इज नॉट रूटेड इन जेलेसी, सस्पिशन एंड इनसिक्योरिटी. देयर लव एक्चुअली बिल्ट ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन. राइट. सो souls are described as waking and watching. हेयर इट्स अ पर्सोनिफिकेशन, या वेकिंग सोल बोल के ना सोल्स का पर्सोनिफिकेशन किया है. और मेटाफिजिकल इमेजिंग तो ये है कि इन्होंने लव को सोल से कनेक्ट किया है, ना कि बॉडी से. ठीक है. अब नेक्स्ट टू लाइन्स है, फॉर लव ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल्स एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर. सो देयर लव इज़ पावरफुल. ठीक है. इनका जो प्यार है ना बहुत पावरफुल है. दैट इट कंट्रोल्स और आउटशाइंस द अपील ऑफ ऑल अदर साइड्स एंड एक्सपीरियंस. मतलब इट कैन कंट्रोल द अदर साइड्स एक्चुअली. इवन अ स्मॉल रूम वेयर दे आर टुगेदर बिकेम एन एंटायर वर्ल्ड. कह रहे हैं छोटे से कमरे में हम लोग पूरा एंटायर वर्ल्ड बन गए हैं. हमारे लिए हम दोनों ही काफ़ी है पूरी दुनिया में. इट शोज दैट सेल्फ सफिशियंसी एंड कम्प्लीटनेस ऑफ देयर लव. तो ये दो लाइन से हमें पता चलता है कि अब इन दोनों को किसी की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों ने अपनी लाइफ आपस में बना ली है. सो बेसिकली जो ये लाइन्स है दो, इसका मतलब ये भी है, वी डोंट नीड टू सी एनी थिंग अदर देन और एनी वन एल्स देन बोथ ऑफ अस. हम तो हमारे लिए बहुत हैं. सो फॉर लव ऑल लव फॉर अदर साइड्स कंट्रोल. अब हमको नहीं ज़रूरत, मतलब our love is so powerful and it can control the appeal of others' sight and experience. Even in this small room where they are together becomes an entire world, and it shows the self-sufficiency and completeness of their love. जो हमने थीम पढ़ा था ना, completeness, mutual and completeness, तो वो यही है. ठीक है. तो पैराडॉक्स यहाँ पर ये कि वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर, मतलब यहाँ पर एक रूम को पूरी दुनिया से कंपेयर कर दिया है. और हाइपरबोली ये यहाँ पर कि लव की कंप्लीटनेस को कितना ज़्यादा एग्जैजरेट किया है कि पूरी दुनिया की कोई परवाह ही नहीं है अब. ठीक है. और जो ये इन्होंने छोटे से कमरे को, वन लिटिल रूम को एक पूरा यूनिवर्स बनाया, बोल रहे ना, एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर. तो एवरीवेयर यहाँ पर बोल रही है यूनिवर्स को. ठीक है. तो एक छोटे से कमरे को यूनिवर्स बना रहे हैं. ये तो ये इमेजरी भी है और ये हाइपरबोली भी है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट लाइन्स, लेट सी डिस्कवरर्स टू न्यू वर्ल्ड हैव गॉन. मतलब जो सी डिस्कवरर्स थे लाइक वास्को डी गामा, वो तो नए वर्ल्ड में चले गए. मतलब जिन देशों को उन्होंने डिस्कवर किया, जैसे वास्को डी गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया तो वो वहाँ चला गया. लेट मैप टू अदर वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन. मतलब जो मैप थे दूसरों के, वो वो दिख रहे हैं अब हमको. मतलब ये कि सी वॉयजेस गो फाइंड न्यू लैंड्स, और जो वो मैप उनका अनएक्सप्लोर्ड था वो भी एक्सप्लोर हो जाएगा. ठीक है. सो बेसिकली ही डिसमिसेस, ये दो लाइन का मतलब है, ही डिसमिसेस वर्ल्डली एक्सप्लोरेशन
वो कह रहा है कि सी डिस्कवर्स जो है, मतलब सी वॉयजर्स जो हैं, दे गो फाइंड न्यू लैंड्स, लेट मैप shows unexplored places, but both of them, the speaker and his beloved, they don't need geography or physical adventures. मतलब सी वॉयजर्स, सी डिस्कवरर्स कहीं भी जाते रहे, नई दुनिया खोजते रहे, नए देश खोजते रहे, हमको नहीं चाहिए ये सब चीज़. दे डोंट नीड जियोग्राफी और फिजिकल एडवेंचर्स. देयर लव इज़ इनफ फॉर देम. बहुत है. देयर मतलब इनका जो प्यार है इनफ है, सफिशियंट है. देयर लव इज़ इनफ एंड देयर इनर वर्ल्ड इज़ रिचर देन एन एक्सटर्नल डिस्कवरी. मतलब ये बाहर जाके कितने भी न्यू वर्ल्ड ढूंढ ले, कितनी भी अच्छी से अच्छी कंट्री ढूंढ ले, लेकिन इनका जो इनर वर्ल्ड है, मतलब जो प्यार से बना है ना, इनके लव से बना है, तो जिनका इनर वर्ल्ड है इज़ रिचर, वो ज़्यादा रिच है देन एनी एक्सटर्नल डिस्कवरी. तो यहाँ पर हिस्टोरिकल एल्यूजन हुआ है. एल्यूजन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जिसमें आप कोई हिस्टोरिकल एक्चुअल इवेंट की बात करते हो, तो वो द एज ऑफ डिस्कवरी की बात हो रही है जो 16-17 सेंचुरी में हुई थी. आयरनी ये है कि डिस्पाइट बिंग फिजिकली कन्फाइंड, दे आर मोर फुलफिल्ड एंड देन एक्सप्लोरर्स. ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल एक्सप्लोरेशन वर्सेस स्पिरिचुअल लव को देख सकते हैं. लास्ट लाइन है इस पोएम की, लेट अस पॉजेस वन वर्ल्ड, ईच हार्ट वन एंड इज़ वन. हार्ट जो है इसको हार्ट बोलते हैं. ठीक है, इसका ये भी आर्काइक वर्ड है. इसका मतलब होता है हैव और हैज़ भी हो सकता है. सो इस लाइन का मतलब है लेट अस पोजेस वन वर्ल्ड, ईच हार्ट वन एंड इज़ वन. सो दे डोंट नीड अदर्स वर्ल्ड. उन्हें नहीं ज़रूरत दूसरों की दुनिया की, बिकॉज दे ईच हैव वन वर्ल्ड. उनके पास एक दुनिया है, एंड ईच अदर. ठीक है, एंड इवन मोर प्रोफाउंडली ईच इज़ वन, मीनिंग देयर सोल्स आर सो यूनिफाइड. बहुत ज़्यादा यूनिफाइड उनकी सोल. दे आर नाउ वन बीइंग. दोनों, वो बोलते हैं ना कि दो जिस्म एक जान है, मतलब उनकी बॉडीज़ तो अलग है, लेकिन दे आर नाउ वन बीइंग. दोनों को एक ही मानो, दोनों की सोल मिल गई है. दिस इज स्पिरिचुअल फ्यूजन, अ होल मार्क ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री. ठीक है, सो यहाँ पर मेटाफिजिकल कंसीट भी है कि लव एज अ कंप्लीट वर्ल्ड. ठीक है, सो बेसिकली ये जो लाइन थी ना, इस लास्ट लाइन का मतलब ये भी था कि वी हैव अ वर्ल्ड फॉर बोथ ऑफ अस. सो दिस सेकेंड स्टेंजा expresses how true love brings spiritual awakening, replaces jealousy with trust, and makes a simple space feel like the universe. Love gives them a world where the external irrelevant, मतलब उनको लव ने उनको एक खुद की एक दुनिया दे दी है. अब बाहर की जो दुनिया है, एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है, उनके लिए इररिलेवेंट है, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, नाउ द थर्ड एंड लास्ट स्टेंजा इज माई फेस इन डाइन आई. डाइन का मतलब भी होता है योर. माई फेस इन डाइन आई मतलब मेरा फेस तुम्हारी आंखों में. डाइन इन माइन appears, and true plain hearts do in the faces rest. So basically ये जो लाइन है ना, प्लेन हार्ट्स डू इन द फेसेस रेस्ट, इसका मतलब ये कि रियलिटी ऑफ आर रिफ्लेक्टेड, मतलब रियलिटी ऑफ आर रिफ्लेक्शन विच वी कैन सी ऑन आर फेसेस. मतलब तुम्हारी चेहरे का रिफ्लेक्शन मुझे में दिख रहा है, मेरी आंखों में दिख रहा है, और मेरा रिफ्लेक्शन मुझे तुम्हारी आंखों में दिख रहा है. सो द स्पीकर सीज हिज रिफ्लेक्शन इन हिज बिलवेड्स आईज, राइट, एंड वाइस वर्सा, अ सिंबल ऑफ म्यूचुअल रिकॉग्निशन एंड यूनिटी, राइट. और जो ये लाइन है ना, ट्रू प्लेन हार्ट्स, इट मीन्स प्लेन हार्ट्स का मतलब यहाँ पर है सिंसियर, जो बहुत सिंसियर है. अनप्रिटेंशियस लव है, ऐसे प्रिटेंड नहीं कर रहे. सो देयर सिंसियरिटी, the sincerity in their love, unpretentious love, they are visible on their faces actually, right. So there are no deceit, there is no deceit, there is no disguise, there is no disconception, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है. because their love is transparent, their love is honest, their love is pure, their love is very very बहुत अच्छा है, बहुत प्योर है. ठीक है, और इतनी प्योरिटी है कि दोनों
एक दूसरे का रिफ्लेक्शन अपनी अपनी आँखों में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज द स्ट्रॉन्ग विजुअल ऑफ रिफ्लेक्शन इन ईच अदर्स आइज इज रिप्रेजेंटिंग हेयर। ठीक है, जैसे बोले ना माई फेस इन डाइन, डाइन इन माइन, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, और आई से ना ये एक तरह से सोल को भी कनेक्ट कर रहे हैं कि मेरे अंदर तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे अंदर मेरी आत्मा। सो इट्स अ डीप, इन शॉर्ट वी कैन से दैट आत्मा आत्मा नहीं है ऐसे कुछ, इट्स अ डीप इमोशनल कनेक्शन। सो इट वी कैन सी लव एज अ मिरर ऑफ सोल, राइट। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज वेयर कैन वी where can we find two better hemispheres without sharp north, without declining west? So sharp जो है ना, sharp इसको हम cold बोल सकते हैं। नॉर्थ और साउथ जो पोल्स है बड़े कोल्ड है ना अर्थ के। एंड विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट, डिक्लाइनिंग इट्स बेसिकली डार्कनेस हो जाती है ना जब वेस्ट की तरफ, जैसे जब टिल्टेड रहती है ना अर्थ, तो एक हिस्से में, मतलब विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट, मतलब वेस्ट में कोई डार्कनेस भी नहीं है, कहने का मतलब ये है। सो दीज टू लाइन्स, इनका मतलब है ही कंपेयर्स देयर लव टू टू परफेक्ट हेमिस्फेयर्स। ये अर्थ होती है, आपने थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ा होगा, ये अर्थ यहाँ पे बताते हैं, चलो ये अर्थ होती है ना, ये ऐसे डिवाइडेड होती है, थोड़ी टिल्टेड होती है ना अर्थ, तो ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है, ये साउथ हेमिस्फेयर है। तो ये खुद को ऐसे ही बोल रहे हैं कि जैसे हम भी हेमिस्फेयर हो गए हैं। सो ही कंपेयर्स देयर लव टू टू परफेक्ट हेमिस्फेयर मैचिंग हाउस ऑफ अ ग्लोब सजेस्टिंग बैलेंस एंड कम्प्लीटनेस। जैसे अर्थ का नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर बिल्कुल बैलेंस्ड है ना, कोई कम ज़्यादा नहीं, एकदम कम्प्लीटनेस है, दोनों को मिला दो तो कंप्लीट अर्थ बन जाती है। सो दीज हेमिस्फेयर आर आइडियल बिकॉज दे हैव नो शार्प नॉर्थ। अच्छा, ये अर्थ पे भी जो चीज़ें हैं उसको भी आइडियल नहीं बोल रहे, ये अपने हेमिस्फेयर को ज़्यादा आइडियल बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शार्प नॉर्थ नहीं है, इनका जो वो है ना, क्या नाम, इनका जो हेमिस्फेयर है वहाँ पे विदाउट शार्प नॉर्थ है वो। इसका मतलब ये है कि कोई कोल्डनेस नहीं है, मतलब कोई क्रुएलिटी नहीं है। कोल्ड का यहाँ पर मतलब क्रुएलिटी से है। तो कितना एग्जैजरेशन है कि इन्होंने अर्थ को बोल दिया कि यहाँ अर्थ पे क्रुएलिटी है, अर्थ पे कोल्डनेस है, लेकिन हमारे हेमिस्फेयर में कोई भी कोल्डनेस नहीं है, क्रुएलिटी भी नहीं है भाई, हम तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, एंड नो डिक्लाइनिंग वेस्ट। देखो ये भी नहीं है हमारे पास, मतलब इस अर्थ पे तो डिक्लाइनिंग वेस्ट है, लेकिन हमारे हेमिस्फेयर पे नहीं है। डिक्लाइनिंग वेस्ट बेसिकली नो सेटिंग और फेडिंग लाइक द सन। सो इनका कहने का मतलब है शॉर्ट में, देयर लव इज टाइमलेस विदाउट फ्लो एंड अनचेंजिंग। मतलब जैसे अर्थ पे तो रहता है ना, कभी किसी हिस्से में अंधेरा हो जाता है, कभी किसी हिस्से में अंधेरा हो जाता है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि अर्थ के पूरे हिस्से में हमेशा रोशनी रहती है। जब आधी दुनिया में दिन होता है तो आप जो आधी बाकी दुनिया होती है वहाँ सवेरा होता है। तो यहाँ इनके हेमिस्फेयर में ऐसा नहीं है, मतलब इनके ग्लोब में ऐसा नहीं है। इनके ग्लोब में कभी अंधेरा नहीं है, कोई क्रुएलिटी नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। और इनका जो प्यार है, देयर लव इज़ टाइमलेस विदाउट फ्लॉ एंड अनचेंजिंग। कोई चेंज नहीं आते इनके प्यार में, कोई कमी नहीं है इनके प्यार में। सो हेमिस्फेयर्स represent two souls of perfectly joined together। ये जैसे दो सोल्स ही मिलके एक बन गई हैं, जैसे दो हेमिस्फेयर ने मिलके अर्थ को बनाया है। मेटाफर है ये, ठीक है। नाउ द लास्ट लाइन्स, whatever dies was not mixed equally if two loves be one, or thou and I love so like that none do slacken, none can die. So he ends with a philosophical thought, anything that dies in something that was not mixed in balance, right? Like unstable chemical compound, कुछ भी मतलब कोई भी चीज़ अगर कोई भी चीज़ मर जाती है तो वो मिक्स नहीं हो पाती ना बैलेंस तरीके से। बट
इफ़ देयर लव इज़ परफेक्टली ब्लेंडेड, उनका अगर प्यार परफेक्टली ब्लेंडेड है, मतलब बैलेंस्ड है, म्यूचुअल है, इक्वल है, देन इट कांट फेड और डाई। वो कह रहे कि अगर हमारा प्यार परफेक्ट है ना, परफेक्टली ब्लेंडेड है, अगर वो बैलेंस्ड है, इक्वल है, म्यूचुअल है, तो वो कभी फेड नहीं होगा, कभी भी मरेगा नहीं। एंड देयर लव इज़ इमॉर्टल बिकॉज इट्स नॉट सेल्फिश एंड वन साइडेड। उनका जो प्यार है, ना ही वो उसमें सेल्फिशनेस है, ना ही वो वन साइडेड है, वो इक्वल है, म्यूचुअल है। सो बेसिकली ये जो लास्ट लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। लव सो अलाइक दैट नो नन डू स्लैक इन नन कैन डाई। मतलब ये कि वी मिक्स विथ ईच अदर। बहुत बड़े बड़े मतलब हैं इस पोएम में, बहुत अच्छी पोएम है ये। सो फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट भी है यहाँ पर। लाइक मेटाफिजिकल पोइट्री ऑफन यूजेस लॉजिक एंड इंटेलेक्ट इन लव पोइट्री। यहाँ पे साइंटिफिक मेटाफर भी है, जैसे ये है ना मिक्स्ड इक्वली, ये केमिकल कंपाउंड की बात हो रही है यहाँ पर, तो साइंटिफिक मेटाफर है। मिक्स्ड इक्वली रिफ्लेक्ट्स एल्केमिकल एंड एलिमेंट बैलेंस। और ये आई और डाई, देखा ना, इफ़ टू आर लव्स बी वन, और दाउ एंड आई लव सो लाइक दैट नो नन डू स्लेक एंड नन कैन डाई। तो ये यहाँ पर आर्ग्यूमेंट कर रहा है पोइटिकली से, आई और डाई रिदिम हो गया ना। सो यहाँ पर इमॉर्टैलिटी जो है इन लव वो रिप्रेजेंट होता है यहाँ पर। सो दिस स्टेंजा, द होल स्टेंजा elevates their love to the divine and eternal and true perfect reflection, spiritual balance and emotional equality. Their love defies time and death. So this is all about the poem Good Morrow. uh, John Donne's Good Morrow is not merely a love poem, it's a spiritual and intellectual journey फ्रॉम फिज़िकल अट्रैक्शन टू सोलफुल यूनियन। पहले इन दोनों को भी एक दूसरे से फिज़िकल अट्रैक्शन ही था, और तब ये शायद मानते हैं कि हम एक्चुअल प्यार में थे भी नहीं। जिस दिन से ये लोग एक्चुअल प्यार में आए हैं, उस दिन से इनका जो प्यार है वो सिर्फ एक लव, मतलब इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ लव का नहीं है, इट बिकम्स स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल वन, राइट। मतलब ये जो जर्नी है इनकी फिजिकल अट्रैक्शन से लेकर सोलफुल यूनियन तक है। Through its three compact yet philosophical rich stanzas, Donne transforms love from something earthly into something cosmic and eternal and divine. First stanza में ना पोएट ये भी कहता है कि we were sleeping after falling in love, ऐसा बोला है उसने। तब यहीं से पता चलता है हमको कि हाँ, ये लोग पहले फिजिकलिटी में थे ये लोग, मतलब इनका जो प्यार था वो सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर था। They were sleeping actually after falling in love each other they woke up, इनकी awakening हो गई, इनके प्यार की awakening हो गई। So in stanza 1, this one, the speaker reflects on the past, those childish loves that were shallow and incomplete. True awakening happens only when the lover's soul meet. This moment of realization is the beginning of a new life, a spiritual morrow. Morrow means morning, that signifies emotional and intellectual rebirth, right? In stanza 2, Donne expands love beyond physical space, right? The lover's room becomes their entire universe and their trust eliminates fear and jealousy. This stanza celebrates the self-sufficiency and completeness of love when it is rooted in truth and transparency, right? And the last stanza lifts it, actually this stanza 3 lifts the love even higher into metaphysical realm, that where love becomes immortal. Their soul mirror their souls mirror each other so perfectly, so they can become like two matching hemispheres which are balanced, eternal and indivisible. Divide भी नहीं कर सकते आप उन्हें. So Donne closes with a profound observation, that is, anything that dies lack balance. वो चीज़ ख़त्म होती है जिनमें बैलेंस नहीं होता, बट आर लव इज़ filled with balance and equality, so our loves can't die, but their love being perfectly mixed will never decay or end.
So Donne's characteristic use of metaphysical conceits comparing loves to map, hemisphere, alchemical mixture reflects his intellectual style. So the poem is rich with the themes of love, unity, awakening, and spiritual mortality. So the good morrow ultimately teaches us that true love is more than emotion or desire. It is a union of souls that transcends time and death. Donne's metaphysical lens helps us to understand love not just as a feeling but as a philosophical truth. So, and with that, we come to the end of the today's deep and enriching discussion on John Donne's Good Morrow, the Good Morrow. So, we explored how Donne elevates romantic love to a spiritual and internal experience through powerful metaphysical conceits and intellectual imagery, right? So, this poem not only redefines love but also challenges us to think about emotional honesty, soulful connection, and timeless devotion. So that's all for today. Now we have explored the depth and brilliance of the Good Morrow. So it's time to move towards it another powerful and sensuous metaphysical poem by John Donne. So in our next class, we will study his bold and complex poem to his mistress going to bed. So this is one of the Don Jones' greatest poems, a piece that blends erotic desire and spiritual imagery, right? Yet reflects Donne's signature wit, intellect, and daring metaphysical conceits. We will discuss its background, title, and detailed line by line explanation, examine its poetic devices. So, stay tuned and come prepared for a poetic experience that's both provocative and philosophical. Until then, stay curious, stay poetic. Goodbye and take care.